Good morning, students. So we are continuing with our question bank solving with solutions of 12th Maths and Statistics, the Commerce section, Maths 2. So अभी तक हम Maths 2 के 5 chapters complete कर चुके हैं. Now today we are moving forward with the 6th chapter, objectives, that is linear programming problems. So without wasting much time, let us begin with our solving part, students. So as you all know, the very first question is choose the correct option. If LPP has optimal solution at 2 points, then इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? So बच्चे लोग ये लोग बोल रहे हैं अगर optimal solution 2 points पे आता है, that means point A और point B, but दोनों का value is the same. So we will choose option C. LPP will give infinite solutions. So option is C. The feasible region is dash. The feasible region क्या होता है बच्चे लोग? It is a common region determined by all the constraints and it is a common region determined by the non-negative constraint. So अपना ऑप्शन है ऑप्शन डी, दोनों मिला के feasible region मिलता है. That is the region which is determined by the constraints and non-negative constraint. अब मीनिंग क्या है ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया था जब हमने लेसन चालू किया था. सो यू कैन गो थ्रू द लिंक्स आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फिर से अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना है तो यू कैन रेफर टू द लिंक्स व्हिच आर गिवन बिलो. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z व्हिच इज 3x plus 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपको दो इनइक्वेशंस दिए हुए हैं विद लेस देन इक्वल टू साइन. Also x, y is greater equal to 0 क्या होगा? तो बच्चे लोग अपने को पूरा सम सॉल्व करके देखना पड़ेगा रफ में, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. तो कैन यू सी आई हैव सॉल्व्ड द सम, इसे शॉर्टकट में आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो. सो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट द इनइक्वेशंस इन इक्वेशन. तो हम अज्यूम करेंगे लेट x plus y be equal to 2 and 4x plus 3y be equal to 12. अब इक्वल टू के बाद 0 नहीं है तो आप एक बार x को 0 डालोगे सेम इक्वेशन में और उसी इक्वेशन में एक बार y को 0 डालोगे. So put x is equal to 0, so I get the value of y to be as 2. On putting y is equal to 0, I get the value of x to be as 2. So my first coordinate A is 0, 2 and coordinate B is 2, 0. सेम वे फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. x को 0 डाला सो आई एम लेफ्ट विद 3y is equal to 12, y is equal to 4. सो कोऑर्डिनेट C हो गया 0, 4. In the same equation now I'll put y is equal to 0, so I am left with 4x is equal to 12, x is equal to 3. So D coordinate आ गया 3, 0. सो आप देखोगे अगर मैं ग्राफ पे इसको प्रेजेंट करूं तो मैंने रैंडमली इसको प्लॉट किया है एंड मेरे को दोनों लाइंस मिल गई है ए बी एंड सी डी एज यू कैन सी. अब दोनों के साइन लेस देन है बच्चे लोग. लेस देन का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के पास लेकर आना है. सो दिस इज द फीजिबल रीजन. जैसे आपको दिख रहा है मैंने शेडेड रीजन आपके सामने प्रेजेंट किया है. सो AOB इज द फीजिबल रीजन. तो हम हमारे पास A, O और B तीनों के कोऑर्डिनेट्स है. O का कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होता है बच्चे लोग. सो नाउ आई हैव टू पुट द वैल्यूज इन Z. तो Z है 3x plus 5y. तो 0 का आंसर तो 0 ही होने वाला है. 3 zeros are 0 plus 5 into 0. A coordinate is 0, 2. So 3 zeros are 0 plus 5 twos are 10. B coordinate है 2, 0. So 3 twos are 6 plus 5 zeros are 0. So maximum पूछा है बच्चे लोग. So तीनों में maximum is the 10. So answer is A. So I hope you all are clear with the graph and the solving. Okay. Moving forward with the next sum. The minimum value of Z is equal to 4x plus 5y subject to constraints x plus y is greater equal to 6, 5x plus y greater equal to 10, x, y greater equal to 0. तो वापस आपके पास दो इनइक्वेशंस है बच्चे लोग. जैसे मैंने अभी समझाया फटाफट से हम सॉल्व करके प्लॉट करके देखते हैं उसको हमारा फीजिबल रीजन क्या आ रहा है.
So as you can see on the top, मैंने पहले x को 0 डाला, फिर y को 0 डाला in the same equation and I got the coordinates a and b. Similarly, I've got the coordinates c and d. Then I plotted them on the graph. अब main important thing है दोनों का sign देखो. So दोनों in equations का sign is greater equal to, मतलब they are going away from the origin. तो that is why मैंने इस तरफ शेड किया है. So as you can see, I have shaded the right hand side away from the origin. शेड करने पर अपने को 3 पॉइंट्स आते हैं बाउंड्री पे, which is C, E and B, जिसमें से C और B के कोऑर्डिनेट्स अपने पास है. E is the new point बच्चे लोग. तो मैंने आपको सिखाया था E पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है. E बन रहा है ये दोनों लाइंस इक्वेशंस की. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को उठा के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. So when I solve them simultaneously, as you can see, y दोनों में कॉमन था, तो I subtracted, साइन चेंज किया, y कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 1 आया मेरे को. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग कोई भी इक्वेशन पे मेरे को y का वैल्यू 5 आया, तो मेरे E के कोऑर्डिनेट्स है 1,5. अब मेरे पास तीनों पॉइंट्स है, तो अब फटाफट से हम z में डाल के देखेंगे किसका आंसर मिनिमम आ रहा है. So at point C, which is 0,10, 4 zeros are 0 plus 5 tens are 50 आता है पहले का आंसर. At point E 1,5, 4 ones are 4 plus 5 5s are 25. So 25 and 4 gives me 29. At point B 6,0, 4 6 are 24 plus 5 zeros are 0. So answer is 24. तो बच्चे लोग तीनों में से मिनिमम कौन सा है? तीनों में से मिनिमम is 24. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने आंसर प्रिंट नहीं किया है. सो अपन ऑप्शन ए को काट के इंस्टेड ऑफ 28 वी कैन कंसिडर 24. तो यहाँ पे अपना आंसर 24 है. सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर, सो यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस. कंटिन्यू करते हैं वापस से. सेम टाइप का ग्राफ आ गया. अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? द पॉइंट एट विच द मिनिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू दो कंस्ट्रेंट दिया है, उसने कौन से पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू आता है. तो बच्चे लोग सबसे पहले अपने लोग को देखना पड़ेगा वेदर व्हाट ऑल पॉइंट्स वी आर गेटिंग. तो सेम रामायण फटाफट से हम करके देखेंगे. जैसे आप लोगों ने देखा है, मैंने सॉल्व किया है. यहाँ पे पहले x को 0 डालो, फिर y को डालो, तो आपको a और b कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सिमिलरली इन द सेकेंड इन इक्वेशन, जिसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो आपको c और d कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन मेक अ ग्राफ एंड प्लॉट द पॉइंट्स लाइक दिस एंड ड्रॉ द लाइंस. वापस से आप देख रहे हो बच्चे लोग, दोनों इन इक्वेशन का साइन इज ग्रेटर इक्वल टू, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से दूर जा रहा है. So you get 3 points in your feasible region A, E and D. अब वापस से E कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं है, E इन दोनों लाइन से बन रहा है, तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे कोई भी एक सिमिलर नहीं है. So what I done is मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है. So I get 2x plus 4y is equal to 20. जिसमें से मैंने सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दिया है. आई हैव कैंसल्ड x, तो मेरे को y 4 आया. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, कोई भी तीनों में से एक इक्वेशन में आप डाल सकते हो, तो आपको x का वैल्यू 2 आता है. सो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज 3 पॉइंट्स इन z. तो z में डाल के देखा. सो a पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 0,8 है, वो मुझे 96 दे रहा है. एट पॉइंट E 2,4 मुझे 64 मिल रहा है. At point D 10,0 मुझे 80 मिल रहा है. तो he is asking me which is the minimum value. तो बच्चे लोग मिनिमम 64 है और वो कौन से पॉइंट पे है? 2,4. सो अपना आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे लोग. आई नो ये थोड़ा सॉल्विंग वाला है, बट ऑप्शन नहीं है, ये लेसन ही ऐसा है, तो इसमें आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा. तो कुछ लेसन फटाफट खाली थियोरी वाले हैं और कुछ में आपको ऐसे प्रैक्टिस करके आंसर्स निकालने हैं. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 4x plus 6y. वापस से उसने आपके सामने वही पूछा है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. दूसरी बात बच्चे लोग, ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अब इस सम में आप देख रहे हो एक क्वेश्चन के साइन लेस देन इक्वल टू के तरफ है.
और दूसरा इन इक्वेशन का साइन ग्रेटर इक्वल टू है, तो अपने को दोनों का कॉमन रीजन लेना है। एक ओरिजिन के पास आ रहा है, एक ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो ध्यान देना बच्चे लोग, स्टार्टिंग सबका सेम है, जैसे मैंने दोनों इन इक्वेशंस को पहले इक्वेशंस पे कन्वर्ट कर लिया, देन पुट x इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, तो आपको 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उन चारों कोऑर्डिनेट्स को मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है इस तरीके से, एज यू कैन सी। नाउ प्लीज पे अटेंशन क्लास, मैंने आपको सिखाया है कॉमन फीजिबल रीजन कैसे लेना है। सो दिस इज 3x प्लस 2y वाली लाइन, ठीक है, तो ये ओरिजिन के पास आ रहा है। ओरिजिन के पास मतलब इस तरफ आएगा उसका पूरा शेडिंग। तो पेन को उल्टा पकड़ो और ओरली चेक करके देखने का, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ बच्चे लोग। सो कैन यू सी ये पूरा रीजन कॉमन एरिया में आ गया उसका। अब दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो दूर जा रहे हैं इक्वेशन से, ओरिजिन से। तो मतलब ये वाला एरिया उस तरफ जा रहा है जो नीचे से थोड़ा शुरू हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। सो दिस इज द रीजन विच इज गोइंग आउटसाइड बच्चे लोग। तो इन आने और जाने में एक रीजन कॉमन है जो आप लोगों को दिख रहा है, जो मैंने ऑलरेडी शेड किया हुआ है। तो ये वाला रीजन है ना बच्चे लोग, जो अपने को कॉमन मिल रहा है दोनों में। बाकी रीजन इस पार उस पार चर्च गेट विरार जैसा हो रहा है, बट ये वाला जो रीजन है ये पूरे को कॉमन है। तो इस तरीके से आई हैव रिमूव्ड माय कॉमन फीजिबल रीजन, जो शेड किया है यहाँ पे डायग्राम में। ना इन दैट बी और डी दो बार रिपीट हो रहे, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, आप देख रहे हैं 4,0 4,0, तो दोनों बार आया है वो। तो अपने को बेसिकली एबीसीडी चारों पॉइंट्स मिले, कोई नया पॉइंट नहीं मिला। सो आई विल पुट ऑल द 4 पॉइंट्स 1 by 1 जेड में और चेक करेंगे कहाँ पे अपने को मैक्सिमम आ रहा है। सो पॉइंट ए 36 दे रहा है, पॉइंट सी 24, पॉइंट बी 16 और पॉइंट डी भी 16 दे रहा है। तो मैक्सिमम सब में मेरे को कहां पे मिल रहा है बच्चे लोग, ए पे मिल रहा है ना मैक्सिमम। तो यहाँ पे हाँ, द पॉइंट एट विच यू आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। सो द आंसर इज ए 0,6 है आंसर, ना कि 0,4, 4,0 नहीं है। तो द आंसर इज ए 0,6। मैक्सिमम वैल्यू पूछा ना उन्होंने, कहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट सोल्यूशन बताने के हिसाब से लिखा था आंसर, बट दे आर आस्किंग द मैक्सिमम वैल्यू, सो इट इज एट ए 0,6. So I hope you all are clear with this particular sum as well, बच्चे लोग. Okay. Moving forward to the next question, question number 7. Z दिया है, constraints आपको दिए हैं और आपको पूछा है वापस से मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आ रहा है। सो सेम तरीका बच्चे लोग फटाफट से देख लो, वही x0 y0 अज्यूम किया मैंने, पहले उसको इक्वेशन में चेंज किया, तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट्स प्लॉट किए। अच्छी बात ये है दोनों इक्वेशन का साइन इज लेस देन मतलब दे आर कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के नजदीक आ रहे हैं। तो मैंने ये वाला एरिया शेड किया है। अगेन आप लोग देख रहे हो बच्चे लोग, यहाँ पे ई पॉइंट इज द न्यू वन, जो अपने पास नहीं है, वो अपने फीजिबल रीजन में इंक्लूडेड है एंड अपने पास उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो फटाफट से वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर आई गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एज 3,4। अब मेरा फीजिबल रीजन के पॉइंट्स हैं 0 A E D, इन चारों को हम Z में डाल के देखेंगे कौन से पॉइंट में मैक्सिमम आंसर आ रहा है। सो जैसे आपने देखा 0 पे तो 0 ही आएगा। एट कोऑर्डिनेट A I am getting the answer as 78. At point E I got the answer as 79 and at point D I got the answer as 45. So maximum is at point E which is 3,4. तो उस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, so we'll be selecting option A. Moving forward with the next question. The corner points of feasible region for the inequation x plus y less than equal to 5 and x plus 2y less than equal to 6 is dash. तो ये तो सबसे सिंपल बात है बच्चा लोग, उन्होंने आपको पूछा है कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है फीजिबल रीजन के। सो उसके लिए फटाफट से वही चीज करना पड़ेगा, अपने को दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि फीजिबल रीजन में कौन कौन से लोग आते हैं। ओके, सो
As you all saw, I got all the 4 coordinates. A 0,5 मिला, B 5,0 मिला, C 0,3 मिला, D 6,0 मिला, and both the inequations are less than equal to के साइन वाले, मतलब ओरिजिन के पास आना है। तो बच्चे लोग ओरिजिन के पास आना है तो मतलब कौन कौन से पॉइंट्स आ गए अपने पास? 0 आ गया, B आ गया, E आ गया और C आ गया। नाउ इनमें से E को छोड़ के बाकी 3 आपके पास है, तो अभी ऑप्शन में चेक करो बच्चे लोग वो 3 कौन से हैं। तो E डेफिनेटली ग्राफ से अगर आप देखोगे तो ओरली पहचान में आ रहा है कि 4,1 ही है, या नहीं तो आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके E का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे अपना आंसर B आ रहा है, तो B ऑप्शन में आप देखोगे 0,3, तो 0,3 C है बराबर। फिर अपने पास O है, तो 0,0 मतलब O होता है। फिर अपने पास B है, B है 5,0 एंड E आता है विच इज 4,1। सो अपना ऑप्शन 8 सम के लिए इज ऑप्शन B। ओके, मूविंग ऑन टू सम नंबर 9। The corner points of the feasible region are, अपने को 5 corner points दिए हैं and they are asking me कौन से पॉइंट पे Z का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस उन्होंने तुम्हें दिया भी है 48 आंसर आता है, तो अभी तो ये अक्कल वाली बात हो गई। तो आप फटाफट से ओरली भी डाल सकते हो या ऐसे चेक भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो 0,3 डेफिनेटली 48 नहीं देगा, 3,0 से भी 48 नहीं आएगा, 8,0 48 दे रहा है, सो ऑफ कोर्स अपना ऑप्शन बी होगा। फ्रैक्शन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, सो ऑन सॉल्विंग यू गेट 44.8। तो एग्जाम में अगर 48 नहीं दिया है तो आपको पता नहीं चलेगा ना विच इज द मैक्सिमम वन। सो इसके लिए आप सब डाल के देख सकते हो, तो मैक्सिमम 48 पे आ रहा है, सो द ऑप्शन इज 8,0। सेम तरीका कॉर्नर पॉइंट्स फीजिबल रीजन के आपको वापस से 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको मिनिमम बताना है कहां पे सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है। सो अगेन एज यू कैन सी आप फटाफट से सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। सो 4,2 18 दे रहा है, 5,0 17.5 दे रहा है, 4,1 is giving you 16 and 6,0 is giving you 21। तो अपना ऑप्शन इज 4,1 which is option D। The constraint that in a college there are more scholarship holders in FYJC class जिसको X से रिप्रेजेंट किया है than in SYJC class जिसको Y से रिप्रेजेंट किया है is what। तो अक्कल वाली बात है, FYJC में ज्यादा बच्चे हैं और SYJC में कम बच्चे हैं। So what is the equation? X ज्यादा है, Y कम है, so option is A, X greater than Y। How does a constraint a washing machine can hold up to 8 kilograms of clothes can be written? Up to बोला है ना, it can hold up to 8 किलोग्राम, मतलब हद से ज्यादा 8 किलोग्राम तो आएगा ही, या 8 या 8 से कम। तो 8 भी आ सकता है ऐसा बोला है ना, अप टू 8 बोला है, 8 तक तो आ ही सकता है। सो वी आर गोना सिलेक्ट ऑप्शन बी, x लेस देन इक्वल टू 8। सो आई होप आपके चूज द ऑप्शन वाले क्लियर हो गए बच्चे लोग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट बी जो कि है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं जैसे आप देख रहे हो। सो लेजी मत बनना बिकॉज थोड़ा सॉल्विंग है, बट ये मत भूलना कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना, और ये सब आपको रफ में करना है, तो एकदम एग्जैक्ट होने का भी जरूरत नहीं है। The maximum value of Z when two inequations are given 20 आता है, वैसा बोल रहा है, तो चेक करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों inequations को I've turned into equations। Apart from that, after getting the coordinates मैंने प्लॉटिंग किया और E कोऑर्डिनेट ढूंढना है जो इस बार फ्रैक्शन में आ रहा है मेरे को। तो as you can see on solving both the equations simultaneously, x का वैल्यू मिला 18/7 और सब्स्टिट्यूट करने पर y का वैल्यू मिला 30/7। अब ये चारों कोऑर्डिनेट्स अपन z में डाल के देखेंगे अपने को कहां पे मैक्सिमम आ रहा है और कितना। सो एट पॉइंट 0 अपन को दिख रहा है z 0 दे रहा है, एट पॉइंट c z is 18, at point E which is the new coordinate my answer is coming 25.7,
एंड एट पॉइंट बी आई एम गेटिंग 20, तो मैक्सिमम 20 नहीं है, मैक्सिमम 25.7 है. And this person is telling me कि maximum value 20 आ रहा है, which is wrong. That is why the answer is false. सेकेंड वाला पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज अ रिलेशन बिटवीन द डेसिशन वेरिएबल्स. ऑफ कोर्स, डेसिशन वेरिएबल्स मतलब क्या, एक्स और वाई, बराबर है. और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जेड होता है. तो आप जेड देख रहे हो ना, 5x प्लस 4y, तो उसमें x और y के बलबूते पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड हो रहा है. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज ट्रू. If LPP has two optimal solutions, then LPP has infinitely many solution. चैप्टर का पहला fill in the blanks इसी से हमने शुरुआत किया था. So therefore the answer is true. LPP is related to efficient use of limited resources. Yes, minimum और maximum आप कैसे decide कर रहे हो, आपके पास जितने resources है उसको कौन से तरीके से कैसे यूज करके आपको फायदा हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम आपकी कॉस्ट खर्चा हो सकती है. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज ट्रू. A convex set includes the points but not the segment joining the points. This is wrong. Answer is false. Convex set का मतलब क्या होता है, पॉइंट के साथ साथ पूरा का पूरा सेगमेंट इंक्लूड किया जाता है in getting the feasible region. So that is why the answer is false, because both of them, points and segments, both are included. If the corner points of the feasible region are 0,7/3, 2,1, 3,0 and 0,0, तो maximum value of z 12 है, ऐसा वो बोल रहे. तो again we'll have to solve and check. तो फटाफट z में डाल के देखते हैं. फ्रैक्शन वाला मुझे दे रहा है 11.6, 2,1 is giving me 13, 3,0 is giving me 12 and 0,0 is giving me 0. So maximum value is not 12, it is 13. So basically sixth वाला option क्या हो गया, false. If the corner points of the feasible region are 0,10, 2,2 and 4,0, so the minimum value is at 4,0. This is wrong. वापस से आपको तीनों वैल्यू z में डाल के देखना है एंड आपको पता चलेगा कि 4,0 पे you are not getting the minimum value. So basically अपना आंसर यहाँ पे गलत होता है. So seventh answer is false. The half plane represented by 3x plus 4y greater equal to 12 includes the point 4,3. So now what they are telling is, जो भी अपना हाफ प्लेन रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें 4,3 आता है. तो अभी वो कैसे पता चलेगा, एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द ग्राफ. बच्चे लोग, मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया. आई गॉट टू कोऑर्डिनेट्स, आई जॉइन द लाइन एंड साइन है ग्रेटर इक्वल टू, मतलब इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन जो भी आ रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर फीजिबल रीजन. तो अभी वो बोल रहे हैं पॉइंट्स 4,3, तो 0.4,3 इस एरिया पे आ रहे, इस जगह पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने फीजिबल रीजन में आ रहा है. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे बोला है इट इंक्लूड्स, तो दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट एंड देयरफॉर वी आर गोना राइट ट्रू ओवर देयर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Corner point method is most suitable method for solving the LPP graphically. Yes, so the answer is true. अपन corner point method ही use करते हैं ना बच्चे लोग. Can you see, अपन corner points को include करके feasible region से graph solve करते हैं. Of all the points of feasible region, the optimal value is obtained at the boundary of the feasible region. No. बाउंड्री पे नहीं, वर्टेक्स पे. वर्टेक्स होता है ना कोई भी डायग्राम जो अपने को मिल रहा है, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, तो O, B, E, C ये सारे वर्टेक्स है, बाउंड्री नहीं है. सो आंसर इज फॉल्स. The point 6,4 does not belong to the feasible region which is bounded by these two in equation. तो सेम वे पहले तो हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे, प्लॉट करेंगे और आपको दिख रहा है द फीजिबल रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन. इतना हिस्सा अपना फीजिबल रीजन है.
नाउ दे आर आस्किंग यू द पॉइंट 6,4, तो आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे पेन से मार्क किया है 6,4. 6,4 आपके फीजिबल रीजन में इंक्लूडेड दिख रहा है बच्चे लोग? बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट इंक्लूडेड. तो वो क्वेश्चन में वही बोल रहा है, इट इज नॉट बिलोंगिंग, सो दैट मीन्स वो सही बोल रहा है. तो द आंसर इज ट्रू. The graphical solution set of the inequation, अभी ध्यान से सुनो इसको कैसे पढ़ना है. y greater than 0 and x greater than 0 lies in the second quadrant. Now x greater than 0 मतलब सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, y greater than 0 मतलब वापस से सारे वैल्यूज पॉजिटिव है. तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एंड ये महाशय बोल रहे सेकेंड क्वाड्रेंट. सो द आंसर इज रॉन्ग, विच इज फॉल्स. सो बच्चे लोग बी वेरी केयरफुल, प्लीज इसको पढ़ना सीखो. मैंने तुम्हें हिंट बताया, जहां पे मुंह खुला है उसको ग्रेटर पढ़ना है, जहां पे मुंह बंद है उसको लेस पढ़ना है. तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखा करो. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है एक्स के तरफ मुंह खुला है मतलब ग्रेटर, वाई के तरफ मुंह खुला है मतलब वाई इज ग्रेटर देन 0. समझ रहे हो? तो उसको ध्यान से पढ़ो, हल्के से मिस्टेक से रॉन्ग मत कराना. Moving forward to the C, fill in the blanks. The variables involved in LPP are called as decision variables. Constraints are always in the form of dash or dash. चाहे equations हो सकता है, चाहे inequations हो सकता है. A set of values of variables satisfying all the constraints of the LPP is called as solution of LPP. By spending almost 250 रुपए, राखी bought some grapes and some dozen of bananas. तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो वेरी सिंपल, मान लो तुम राखी हो और तुमको मैंने 250 रुपीज दिया है, तो तुम 250 रुपए में दोनों चीजें मिलाकर लेकर आओगे ना. 250 रुपए के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करोगे, या तो पूरा 250 खर्च करोगे या 250 से कम खर्च करोगे. So the inequation which you will write is grapes plus bananas, that is x plus y less than equal to 250. मिला के या उससे कम. Tyco Cycles Limited manufactures bicycles and tricycles, जिसको x और y लिया है. The profit earned on each bicycle and each tricycle is 400 rupees and 200 rupees. So the total profit earned by the manufacturer, मतलब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z पूछ रहा है, तो ये तो काफी आसान है बनाना. अगर बाइसिकल्स x लिया है तो एक बाइसिकल पे 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 x लिखेंगे. ट्राईसाइकिल्स को y लिया है, एक ट्राईसाइकिल पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सो मिल रहा है 200 y. एंड प्रॉफिट है तो दोनों को ऐड करेंगे. सो योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z विल बी 400x plus 200y. Moving forward to the sixth one, a doctor prescribed 2 types of vitamin tablets, T1 and T2, for Mr. Dhawan. Tablet T1 has 400 units of vitamin and tablet 2 has 250 units of vitamin. If the requirement of vitamin is at least, तो at least का मतलब क्या है? कम से कम, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा. याद है ना, I told you all the concept. 100 मार्क में से पास होने के लिए कितना चाहिए? एट लीस्ट 35 या 35 से ज्यादा. तो याद रखो, एट लीस्ट माने 35 मार्क्स, मतलब उससे ज्यादा लाने, उतना या उससे ज्यादा. और एट मोस्ट मतलब 100 मार्क का पेपर है ना, 200 तो नहीं आएंगे. 100 मार्क में से या तो 100 आएंगे या 100 से कम आएंगे. तो एट मोस्ट का दूसरा नाम 100 मार्क याद रखो, एट लीस्ट का 35 मार्क्स याद रखो, ऐसे. तो आपका इनइक्वेशन क्या होगा? अगर मैंने टैबलेट 1 को x लिया, टैबलेट 2 को y लिया, तो x में कितने विटामिन है? 400, y में 250. तो एट लीस्ट मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. सो 400x plus 250y greater equal to 4000. The feasible region represented by the inequation x greater than 0 and y less than equal to 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो x greater than 0 मतलब पॉजिटिव है और y less than equal to 0 मतलब नेगेटिव है. तो बच्चे लोग कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो अपना आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट.
हीरम रिक्वायर्स एटमोस्ट, तो एटमोस्ट मतलब 100 मार्क का पेपर, 100 या 100 से कम की बात हो रही है. 400 कैलोरीज फ्रॉम हिज ब्रेकफास्ट. एवरी मॉर्निंग ही लाइक्स टू टेक ओट्स एंड मिल्क. एक बाउल ऑफ ओट्स एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क गिव्स हिम 80 कैलोरीज एंड 50 कैलोरीज. तो बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो वेरी सिंपल, 80x प्लस 50y एट मोस्ट मतलब कम ही आने वाला है, लेस देन इक्वल टू 400 कैलोरीज. Ganesh owns a godown used to store electronic gadgets like refrigerator and microwave. If the godown can accommodate at most 75 gadgets, मिला के 75 ही आ सकते हैं या 75 से कम आ सकते हैं. तो आपका इन इक्वेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 75. तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों लोग. Moving on forward to the last 3 questions. Miss Mohana wants to invest at least 55,000 in mutual funds and fixed deposit. तो मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखोगे. तो वापस एट मोस्ट मतलब 100 मार्क का पेपर, सॉरी एट लीस्ट मतलब 35 मार्क मिनिमम चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए. सो आपका इन इक्वेशन मिला के क्या होगा. x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 55,000. If the feasible region is bounded by the inequations, दो inequation दिए हैं, then 0.5, 4 is dash of the feasible region. तो फट से अपने को दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. इन इक्वेशंस को पहला इक्वेशन बनाओ, कोऑर्डिनेट ढूंढो, कोऑर्डिनेट प्लॉट करो. नाउ दोनों इन इक्वेशंस का साइन लेस देन है मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन. इतना हिस्सा आपका फीजिबल रीजन है. अब 5,4 किधर आता है देखो, मैंने मार्क किया है. तो 5 इधर आ रहा है x का और 4 इधर आ रहा है. तो दिस पॉइंट इज इट इंक्लूडेड इन द फीजिबल रीजन. इट इज नॉट. तो हम क्या लिखेंगे. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीजिबल रीजन. वो हिस्सा नहीं है. The constraint that in a particular 12th class number of boys are less than number of girls. तो बच्चे लोग ये वर्किंग आपने दिखानी है बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया बॉयज को क्या लिया है और गर्ल्स को क्या लिया है. करेक्ट. अब तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे उसमें स्पेसिफाई किया है ना, ये x है ये y है. तो आप ये वर्किंग बता सकते हो फिलअप्स में. लेट बॉयज बी x एंड गर्ल्स बी y. तो उन्होंने बोला है बॉयज आर लेस देन द नंबर. ये नहीं बोला है लेस और इक्वल, खाली लेस बोला है. मतलब लड़के कम है लड़कियां ज्यादा है. तो एक तरीके से आप उसको लिख सकते हो x इज लेस देन y या y इज ग्रेटर देन x. दोनों ऑप्शंस भी सही है. सो आई होप बच्चे लोग विद दिस यू ऑल आर क्लियर विद एलपीपी के ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. थोड़ा मेहनत करना है, डायग्राम्स ड्रॉ करना है, बट सब रफ में करना है. तो स्पीड होना चाहिए तो फटाफट हो जाएगा. So before I wind off, if you like the video बच्चे लोग please do share across with your friends ताकि उनको भी benefit मिले. और ये सिर्फ 12 तक सीमित नहीं है, आप आगे जाओगे तो भी ये यूज में आएगा. तो that is why please don't ignore your studies and keep practicing and learning. So thank you so much बच्चे लोग for listening to me. I stop here for the day.